Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. प्रधान पुंसो शरणं सलब्धये प्रधान पुरोड सपदि सयोरथा बरोड सपदि सयोरथा प्रधान पुंसो शरणं सलब्धये प्रधान पुंसो शरणं सलब्धये ध्याधृतं योगिभिरभ्यं ध्रुवम् ध्याधृतं योगिभिरभ्यं ध्रुवम् नमस्याभ्यं तत्किंबनौकसः नमस्ते भक्त सज्जन ତାଙ୍କର ବ୍ରଜଗମନ ସମୟରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଥ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଶେଷରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ନନ୍ଦଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେ ଅଥାବରୂଢ଼ ସପଦିଶୟ ରଥା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଥରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବା କୁଦି ପଡ଼ି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ପ୍ରଧାନ ପୁଂସଶ୍ଚରଣଂ ସ୍ୱଲବ୍ଧୟେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ପୁଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ ଦ୍ୱୟରେ ବା ଚରଣରେ ମୁଁ ନିପତିତ ହେବି, ଦଣ୍ଡବତ ନିପତିତ ହେବି ଏବଂ କେବଳ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିପତିତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବି ତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଲବ୍ଧୟେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଲାଭ କରିବି। ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ରୂର ମନୋରଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ବହୁ ଅଭିଳାଷ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଦ୍ୱୟର ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ସେ ଚରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧରି ରଖି ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ତେଣୁ ସ୍ୱଲବ୍ଧୟେ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଲାଭ କରିବି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସହଜ ଭାବରେ ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କମଳର ଧ୍ୟାନ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ଧିୟା ଧୃତଂ ଯୋଗୀ ବି ଅପି ଅହଂ ଧ୍ରୁବମ୍। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯୋଗୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କମଳକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟକୁ ଲାଭ କରିବି। ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟରେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବି ଏବଂ ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟରେ ମୁଁ ଲୋଟିଯିବି। ତେଣୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି
ଯେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଚରଣ କମଳ ଦେହକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ମନୋରଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଚରଣ କମଳ ଦେହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ମୋ ପ୍ରତି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସାରା ସଂସାର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଏବଂ ଭଗବାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷଣ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭୟ ହସ୍ତ କମଳକୁ ମୋର ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଅକ୍ରୂର ଉଠ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ କମଳ, ଯାହାକି ଏଇ ସଂସାରରେ କାଳ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହେଉଥିବା ବା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତ କମଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ କମଳ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭୟ ଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ କମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି ବା ମୋର ଏଇ ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ବା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବି ବା ଭୟ ରହିତ ହେଇଯିବି। ସେ ଭୟ, କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନର ଭୟ ଆଉ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତକମଳ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅକ୍ରୂର ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତକମଳ, ଅଭୟ ହସ୍ତକମଳର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ହସ୍ତକମଳ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ପୁଣି ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ କମଳରେ ଜଳଦାନ କରି ସ୍ୱୟଂ ପୁରନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ବଳି ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ କମଳରେ ଜଳଦାନ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ କମଳ କେବଳ ଯେ କାଳସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତା ନୁହେଁ, ବା କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରେ ତା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ କମଳ, ବରଦ ହସ୍ତ କାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ସାର୍ବଭୌମଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଳଦାନ ପୂର୍ବକ ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭଗବାନ ସାର୍ବଭୌମ ପୁରନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ର, ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
केवल भगवान का हस्त रे जलदान करे कारण जितेबाला कौन प्रतिज्ञा करने को हुए से संकल्प करने को हुए और संकल्प रे जलदान करने को हुए तेणु इंद्र यहपरी जलदान करी भगवान सार्वभौम का हस्त रे से हस्तर अर्चना करी से इंद्र पद को प्राप्त होती एवं महाराज बलि से मध्य भगवान वामन देव को त्रिपाद भूमि देवार संकल्प करी तांका हस्तरे जलदान पूर्वक से मध्य इंद्र पद को प्राप्त होती तेणु बलि महाराज वर्तमान सुतल लोकरे प्रतीक्षा करुछंती अष्टम मन्वंतर से स्वर्गर राजा इंद्र हेबे से वरदान प्राप्त कर सारी भगवान का केवल तांका हस्तरे जलदान करे तेणु भगवान से वरद हस्त कमल ताहा कामी मान को परम ऐश्वर्य प्रदान करिपारे केवल जे ताहा कालसर्प द्वारा पीड़ित व्यक्ति मानकर दुख को दूर करिपारे ता नुहे ताहा अनंत ऐश्वर्य मध्य प्रदान करिबारे समर्थ एवं सेही वरद हस्त भगवान जे कि सौगंधी गंधी बोली कहा जायछि जहाको अर्थात सौगंधिक पुष्पर गंध को जे वहन करुछि भगवान से वरद हस्त सौगंधिक यह हूँ गोटे कमल पुष्प जहाँकि मानसरोवर प्रस्फुटित होता है मानसरोवर हृदय ये सौगंधिक पुष्प मान देखा मिलता है एवं सही सौगंधिक कमल पुष्पर एक सुंदर सुगंध प्रवाहित हुए तेणु भगवान हस्त कमल गंध मध्य सौगंधिक पुष्पर गंध सदृश तेणु यही भगवान हस्त कमल जे कि अभय दान देवारे समर्थ समस्त कामना पूर्ण करिबारे समर्थ से भगवान हस्त कमल जो हस्त कमल सौगंधिक पुष्पर गंध निर्गत होउछि से भगवान हस्त कमल रासलीला समय रे गोपी मानकर स्वेद बिंदु को दूर करबा पई न्यस्त है अक्रूर चिंता कर रासलीला समय रे गोपी माने भगवान के सहित नृत्य करने अवसर में जो श्रमयुक्त होती तेणु तांकर अंगरे एवं बदन कमल श्रम बिंदु श्रम झालमान स्वेद बिंदु मान परिलक्षित होती तेणु भगवान से हस्त कमल सेमानकर स्वेद बिंदु को पोछि दौरान तेणु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते तांकर टीकार जे प्रकृत पक्षे भगवान हस्त कमल जो सौगंधिक गंध निर्गत होती ताहा गोपी मानकर मुख कमल स्वेद बिंदु पोछि देथिबा हेतु तांकर स्पर्श लाभ करिथिबा हेतु भगवान हस्त कमल ये सौगंधिक युक्त है सौगंधिक गंधी है अर्थात गोपी मानकर शरीर जो सौगंधिक गंध निर्गत होती तार स्पर्श रे भगवान हस्त कमल ये सौगंधिक गंध युक्त है तेणु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहीपरि भाव व्याख्या करुछन्ति जे भगवान हस्त कमलर सौगंधिक गंध गोपी मानकर अंग स्पर्श से प्राप्त होती किंतु श्रीधर स्वामी से जेतबेले श्लोकर व्याख्या करुछन्ति से कहते जे प्रकृत पक्षे जो माने मुमुक्षु अर्थात संसार भय पीड़ित भयभीत भगवान यही हस्त कमल सेमानकर संसार भय निवर्तक सेमानकर संसार भय को नष्ट करि पारे एवं जो माने सकामानम
अर्थात जो माने कामी अर्थात जो माने भोग कामना करुछन्ति संसार एवं भगवान शरणागत होइछन्ति भगवान हस्तकमल सेमानकर अभ्युदय प्रदान सेमानकर अभ्युदय करिपारे अर्थात भोग ऐश्वर्य प्रदान करिपारे सेमान एवं अनुरक्ता नाम जो माने भगवान के प्रति अनुरक्त जो माने भगवान प्रेमी अर्थात प्रेम पूरित हृदय भगवान उपासना करुछन्ति सेमानंक पई परम सुखप्रद परम सुखदम ठीक जेपरि रासलीला रे भगवान श्रीकृष्ण गोपी मानकर समझाल को पोछि देई सेमानंकु अनंत सुख प्रदान करथिले गोपी माने ता द्वारा आनंद प्राप्त हेथिले तेणु भगवान से हस्तकमल गोपी मान परि अनुरक्त प्रेमी भक्त मान के प्रति परम सुखप्रद बलि महाराज एवं पुरंदर इंद्र आदि भोगकामी मान के प्रति से परम ऐश्वर्यप्रद एवं जो माने एई संसार कालसर्प द्वारा दंशित होउछन्ति दुख बा कष्ट जीवन रे अनुभव करुछन्ति सेमाने जेतेबेले भगवान शरणागत हुअन्ति से भगवान हस्तकमल सेमानक पई परम भय निवर्तक तेणु यहीपरि भाव में भगवान हस्तकमल विभिन्न व्यक्ति मान प्रति विभिन्न भाव में वरप्रद होपरि भाव में श्रीधर स्वामी तार व्याख्या कर तेणु अक्रूर यहीपरि भाव में भगवान हस्तकमल वरद हस्तकमल महिमा कथा चिंता करू करू तांका मनरे गोटे शंका उत्पन्न होछि से भाबुछन्ति जे मु वर्तमान कंसर दूत होई भगवान निकट को आसीछि तांको मथुरा नहीं जीवा पाए तेणु मते देखी काले भगवान श्रीकृष्ण मते तांकर शत्रु ज्ञान करिवे सेथिबाई अक्रूरंकर शंका उत्पन्न होछि से भाबुछन्ति जे भगवान कृष्ण से मते मु कंसर दूत होई आसीथिबा हेतु मो प्रति शत्रु ज्ञान तो करिवे नहीं शत्रु ज्ञान करी मो उपरे तांकर कृपा दृष्टि वर्षण करिवे नहीं एपरि हब नहीं तो एपरि भाव में शंका उत्पन्न होछि अक्रूरंक मन पुणी परवर्ती मुहूर्त से भाबुछन्ति जे एकथा सत मुझे कंसर दूत कंसर दौत्य कर्म करने पाई मु ब्रजभूमि को आसी कंसर आज्ञा बा कंसर संदेश बहन करी आसी मु कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जावा पाए तेणु जेकोसी व्यक्ति मते कंसर दूत हिसाब से कृष्ण बलराम बा ब्रजवासी शत्रु भाव में ग्रहण कर पारे पुणी परवर्ती मुहूर्त अक्रूर निजर मन को सांत्वना प्रदान कहते जे भगवान कृष्ण से होती परम पुरुष भगवान एवं से समस्त प्राणी मान हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुछन्ति से हृदय रे परमात्मा रूप में रहिछन्ति एवं बाहर से मध्य सर्वव्यापी ईश्वर भाव में रहिछन्ति तेणु से व्यक्तिर हृदय भाव को जानी पारନ୍ତି जेहेतु से परमात्मा रूप में रहिछन्ति तेणु व्यक्ति हृदय रे कौन चिंता करुछि तार हृदय भाव कौन से कथा को भगवान बुझी पारନ୍ତି तेणु व्यक्तिर समस्त भाव एवं कर्मर साक्षी होउछन्ति भगवान से होउछन्ति अंतर्यामी अंतर्गत भाव को जानନ୍ତି तेणु से निश्चित भाव में मोर मनोभाव को बुझी पारे जे जदिओ मु कंसर दौत्य कर्म करने पाई आसी दूत भाव में आसी किंतु मो हृदय रे भगवान कृष्ण के प्रति कौन शत्रुता भाव नहीं भगवान भक्त तांका प्रति मोर भक्ति भाव रही एक भगवान कृष्ण अवश्य जानीपर तेणु से मत केवे शत्रु भाव में ज्ञान करेंगे ना एपरि भाव में अक्रूर निजर मन को आश्वासन दौरान तापर से चिंता करुछन्ति जे जेतेबेले एपरि भाव में
भगवान कृष्ण से मो प्रति कृपा दृष्टि निक्षेप करिवे जेतेबेले मु तांका चरण रे पतित हिथिबी एवं से मो प्रति कृपा दृष्टि निक्षेप करिवे भगवान कृपा दृष्टि को प्राप्त होई मोर समस्त कलमश दूरीभूत हो मु पवित्र हो भगवान कृपा दृष्टि प्राप्त हेबा मात्र मोर समस्त कलमश दूरीभूत हो एवं मु शुद्ध हो तेणु भगवान श्रीकृष्ण एपरि भाव जेतेबेले मो प्रति कृपा दृष्टि निक्षेप करिवे सेतेबेले मु कृतांजलि पुटरे भगवान के सम्मुख रे छिड़ा हिथिबी मस्तक अवनत करी एवं भगवान कृष्ण संगे संगे मते मोर हाथ को धरी से निज आड़ को टाणी नेबे एवं मते आलिंगन करिवे अक्रूर एपरि भाव मनोरथ करुछन्ति जे भगवान कृष्ण जेतेबेले मते आलिंगनबद्ध अवस्था रखिथिबे सेतेबेले मोर ए शरीर संपूर्ण भाव शुद्ध हो शरीर मोर तीर्थ रे परिणत हो भगवान से अंग संग को लाभ करी मु मोर शरीर तीर्थ सदृश पवित्र हो एवं यही शरीर से गुण को प्राप्त हम जे यही शरीर स्पर्श जो मैंने आसवे जेहेतु शरीर तीर्थ भाव परिणत हम तेणु मोर शरीर स्पर्श अन्य माने पवित्र हो तेणु भगवान से अंग संग लाभ करिवार यह हेउची महत्व एवं भगवान अंग संग लाभ करने द्वारा मोर कोटि जन्मर जो सब कर्म फलमान रही पाप कर्मर फलमान सब रही सब दूरीभूत हो कर्म बंधन रु मुक्त हो तेणु यहपरि भाव अक्रूर चिंता करुछन्ति जे प्रकृत पक्षे भगवान कृष्ण जेहेतु से परमात्मा अंतर्यामी से मते शत्रु भाव ज्ञान करिवे नाही कारण से हृदय रही मोर मनोगत भाव को बुझी पारिबे जे मु होउची तांकर सुहृत्तम मु तांकर हितकांक्षी बंधु एवं अनन्य दैवता मु भगवान कृष्ण का भिन्न अन्य कहारी को मोर प्रभु भाव जाने ना एवं तांकर मु होउची ज्ञाति कुटुंब तेणु से मत शत्रु ज्ञान करी निश्चित भाव निजर मित्र बा ज्ञाति कुटुंब भाव ग्रहण करी से यहपरि भाव मत आलिंगन करिवे एवं मो प्रति कृपा वृष्टि वर्षण करिवे जहा द्वारा मोर समस्त कर्म बंधन नष्ट हो मु कर्म बंधन रु मुक्त हो मोर ए शरीर पवित्र हो तीर्थ रे परिणत पुणी अक्रूर मनोरथ करुछन्ति लब्धांग संगम प्रणतं कृतांजलि मां बक्ष्यते अक्रूर तते तु रुत्सवा तेणु अक्रूर भावुछन्ति जेतेबेले मु भगवान एपरि भाव अंग संग प्राप्त हेबी एवं तांकर सम्मुखरे मु कृतांजलि पुटरे दंडायमान ही रही सेतेबेले भगवान जे कि जहांकर जस चतुर्दिगर परिव्याप्त होईची से भगवान मते अति आनंद रे एवं प्रेम परवश होई से मते संबोधन करिवे हे तात अक्रूर मां बक्षते अक्रूर से मते संबोधन करिवे जे हे तात अक्रूर तेणु जेतेबेले भगवान एहीपरि भाव संबोधन करी मोर आदर करिवे मते सम्मान प्रदर्शन करिवे मोर ई मनुष्य जन्म सार्थक हो तेणु अक्रूर कहते तदा वयं जन्म भृतो महीयसा जे जो माने संसार रे जन्म ग्रहण करिसंती सेमानकर जन्म सार्थक हब सेमाने महानता को प्राप्त हेबे जेतेबेले सेमाने एपरि भाव भगवान के द्वारा संबोधित हेबे बा भगवान के द्वारा आदर सम्मान प्राप्त हेबे
ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନୈବା ଦ୍ରୁତ ୟୋ ଧିକ୍ ଅମୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଦୃତ ହେଇନାହିଁ, ଆଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଧିକ୍। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବଭୂତ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମଭୂତ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍, ବୃଥା ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଏହି ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃଥା ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଭଗବାନଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଜୀବନରେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, ତାହେଲେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅକ୍ରୂର ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବି, ଭଗବାନ ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ହେ ପ୍ରିୟ ତାତ ଅକ୍ରୂର, ସେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନ ତସ୍ୟ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୟିତଃ ସୁହୃତ୍ତମ ନ ଚା ପ୍ରିୟ ଦେଶ ଉପେକ୍ଷ ଏବ ବା ତଥାପି ଭକ୍ତାନ୍ ଭଜତେ ଯଥା ତଥା ସୁରଦ୍ରୁମ ୟଦବତ୍ ଉପାଶ୍ରିତ ଅର୍ଥଦ। ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଅପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ବା କେହି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦ୍ୱେଷ ଅସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ, ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାଏ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ମୋର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ବା ମୋର କେହି ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତୁମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତି,
ମଇ ତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍, ସେମାନେ ମୋର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛି। ମଇତେ ତେଷୁ ଚାପି ଅହମ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଉଦାହରଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅନୁରୂପ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଯଥା ମଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଥାଏ ବା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଉପାସନା କଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ନ କଲେ ବା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଚନା ନ କଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଯଦିଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ନିକଟରୁ କାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କହେ ଯେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୋତେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲାନି, କାରଣ ଆମେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇନୁ, ତେଣୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଦୋଷ ନାହିଁ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ସେ କାମନା କରେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର, କାରଣ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର, ସେପରି ନିର୍ଭର କରୁନି। ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କୃପା କଥା, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଳରାମ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭ୍ରାତା, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ହସ୍ତକୁ ଧରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତାପରେ ବଳରାମ ମୋର ହସ୍ତକୁ ଧରି ନିଜର ଭ୍ରାତା ଅନୁଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ
से मोर मते आसन प्रदान करिवे एवं आसन प्रदान करी मते अतिथि भाव मोर अभ्यर्थना करिवे, मोर सत्कार करिवे, मोर पद को धौत करिवे एवं पद धौत करी किछि मते पानीय अर्पण करिवे। एहिपरि भाव मते मोर सत्कार करी मते बसिया पई आसन प्रदान करिवे एवं शेषरे पचारिवे जे हे तात अक्रूर, कंस जे कि अत्यंत अत्याचारी दुष्ट से आमर पितामाता एवं बंधु बांधव मान प्रति किपरि भाव आचरण कर प्रश्न पचारे। तेणु एहिपरि भाव बलराम से मते अभ्यर्थना करिवे एवं कंस संबंध रे मते प्रश्न पचारिवे। एही कथा चिंता करी करी जतेबेले अक्रूर आसुचंती से जानी पारि नाहंती से केतेबेले आसी से नंद गोकुल रे आसी उपस्थित होइछंती। समग्र मार्ग रे अर्जुन अक्रूर केवल कृष्णଙ୍କର कथा ही चिंता करुछंती, कृष्ण बलरामଙ୍କର कथा ही चिंता करुछंती। तांकर अन्य केउ आड़े ध्यान जाउना, रथ आपे आपे चली से कौन सी चेष्टा करूना जे रथ किपरि अति शीघ्र नंद गोकुल रे पहुंचब सेपरी चेष्टा तांकर नाही। अश्व माने निज इच्छा रे रथ को बहन करी आनुसंती नंद गोकुल को। तेणु अक्रूर को पूरा दिन लगी जाए। सकाळु बाहरी अक्रूर मथुरारू एवं संध्या समय जितेबाला सूर्य अस्तगामी होती सेतेबाला अक्रूर आसी नंद ब्रज पहुंचती। तेणु केतेबाला आसी से पहुंची जाइछंती से जानी पारि नाहंती। तेणु श्रीधर स्वामी तांकर टीकारे कहउछंती जे अक्रूर मार्ग जानी पारि नाहंती, को मार्ग रे आसिले केमिति आसिले सेति प्रति तांकर ध्यान नाही। एवं से आसी नंद गोकुल रे पहुंचती जितेबाला सूर्य अस्तगामी होती एवं जितेबाला से पहुंचती गोष्ठ निकट रे अर्थात जोठारे नंद महाराजंकर गोशाला रही गोरु माने जोठारे रहंती गोष्ठ ताकू कहा जाए। तेणु गोष्ठ निकट रे जितेबाला अक्रूर आसी पहुंचती से रथ उपरु देखुचंती जे भगवान कृष्णଙ୍କର चरण चिन्ह भूमि रे अंकित हो जाए। तेणु भगवान कृष्णଙ୍କର चरण चिन्ह को दर्शन करी अक्रूर रथ उपरु तत्क्षणात डेई पड़ी कूदी पड़ी रथ अत्यंत भाव विह्वल है। जो भगवान चरण कथा चिंता करी करी मार्ग रे अक्रूर आसुचंती, जो चरण कमलर महिमा कथा चिंता करी अक्रूर भक्ति भाव रे आकुल होइचंती व्याकुल होइचंती। वर्तमान से भगवान चरण चिन्ह दर्शन करुचंती अक्रूर रथ उपरु। तेणु भगवान चरण चिन्ह दर्शन करने मात्र तांकर हृदय रे प्रेम भाव उद्रेक है, तांकर शरीर रे रोमांच उत्पन्न है, चक्षुरु लोतकर धारा प्रवाहित हो, कंठ गदगद हो उठी। तेणु यहीपरि भाव अक्रूर रथरु डेई पड़ी भगवान से चरण चिन्ह अंकित होता भूमि उपरे अक्रूर लोटी जाउछंती। से भगवान चरण चिन्ह को प्राप्त है क्षिति तार अर्थात पृथ्वी सौंदर्य वृद्धि हो। प्रकृत पक्षे ये पृथ्वी यदि किसी सौभाग्य थाए ताहले भगवान चरण चिन्ह ही पृथ्वीर सौभाग्य बा धन। जो चरण चिन्ह को प्राप्त हुई पृथ्वीर जस समग्र सृष्टि परिव्याप्त है, समग्र विश्व परिव्याप्त है। पृथ्वी आदि जदि सौंदर्य को लाभ करिछि
ताहले भगवान कृष्णकर से चरण चिन्हर सौंदर्य को प्राप्त होई पृथ्वी सुंदर देखा तेणु अक्रूर भगवान से चरण चिन्ह उपर लोटी जाई लोतक वृष्टि करू बाष्पाकुल कंठरे कहते जे आहा यही हूँ भगवान से चरणर धूली जहाँकि मते आज प्राप्त है तेणु भगवान चरण धूली अक्रूर लोटी जाउछन्ति एवं आनंद रे लोतक वर्षण करी निजर सौभाग्यर प्रशंसा करी कहते यही हूँ से प्रभुंकर चरण धूली जो चरण धूली को वर्तमान मु प्राप्त हो तेणु यहीपरि भाव अक्रूर धूली रे लोटी भगवान से चरण धूली जहाँ को प्राप्त होगापाई दिक्पाल माने सृष्टिर आधिकारिक देवता माने जो भगवान चरण धूली को निजर मस्तक धारण करिथांती सेही भगवान चरण धूली को वर्तमान अक्रूर सर्वांगरे लेपन करुछन्ति एहीपरि भाव अनेक समय धरी अक्रूर भगवान से धूली रे चरण धूली रे लोटी अत्यंत आनंद अतिशय प्रेमातिशय जोगु से अत्यंत आनंद अनुभव करुछन्ति एवं किछि समय पाई सेटारे लोटी रही बारंबार एई वाक्य को उच्चारण करुछन्ति जे ये होछि प्रभुंकर चरण धूली यह को प्राप्त होई मु आज धन्य होइछि किंतु किछि समय पर अक्रूर निजको निजे प्रकृतिस्थ होउछन्ति से पुणी सेठारु उठुछन्ति पुणी रथ आरोहण करुछन्ति रथ आरोहण करी किछि दूर जाइछन्ति अक्रूर पुणी रथ उपरु से कृष्ण एवं बलराम को दूररू दर्शन करुछन्ति से समय रे कृष्ण एवं बलराम गोष्ठ को आसी गोदहन करने तेणु बहुत दूररू दर्शन करुछन्ति अक्रूर कृष्ण बलराम तेणु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तंकर टीकारे व्याख्या करी कहउछन्ति जे प्रकृत पक्षे अक्रूरंकर मथुरारू ब्रजभूमि को आसिबा कंसर आदेश को प्राप्त हुई एवं पथ मध्य भगवान कथा चिंता करिवा भगवान रूपर स्मरण करिवा ये सब कथा चिंता करी करी आसी शेष अक्रूर भगवान चरण धूली को प्राप्त होउछन्ति एवं से चरण धूली रे लोटी जाइछन्ति प्रेम भाव उद्रेक होइछि अक्रूरंकर एवं शेष से जीवन जो चरम लक्ष्य भगवान का दर्शन से दर्शन को वर्तमान अक्रूर प्राप्त होछन्ति कृष्ण बलराम को से दर्शन करुछन्ति तेणु सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जितेबाला वर्णना करुछन्ति ए दृश्यर सेतेबाला से कहउछन्ति देह वृतं यान अर्थ हित्वा दंभं भियं सुचम छंदे सात यो हरेर लिंग दर्शन श्रवणादि तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति महाराज परीक्षित को प्रकृत पक्षरे जो माने देह धारण करिछन्ति अर्थात संसार रे जन्म ग्रहण करिछन्ति सेमानकर जीवन यह ही होछि लक्ष्य यही भगवत प्रेम को प्राप्त हवा जो भगवत प्रेम को वर्तमान अक्रूर प्राप्त होइछन्ति यही भगवत प्रेम को प्राप्त हेवा प्रत्येक देहधारी मानकर जीवनर लक्ष्य केवल संसार रे जन्म ग्रहण करी अर्थ संग्रह करवा परिवार भरण पोषण करवा इंद्रिय तृप्ति करवा यह जीवनर लक्ष्य नुहे
प्रत्येक देहधारी मानकर एकमात्र लक्ष्य ए कृष्ण प्रेम को प्राप्त हवा ताहले तांकर जीवन सार्थक हब। तेणु अक्रूर वर्तमान जितेबाला भगवान चरण धूलि लोटी जाइछन्ति सेतेबाले तांकर जीवनर चरम लक्ष्य को से प्राप्त होइछन्ति। प्रेम पूरित हृदय रे से तांकर हित्वा दंभम से तांकर दंभ अहंकार को परित्याग करिछन्ति। भगवान चरण धूलि लोटिबा यह समस्त करिपारिबे नाही। जो माने संसार रे अति उच्च कूल रे जन्म ग्रहण करिछन्ति, जो माने उच्च शिक्षा लाभ करिछन्ति, बा जो माने अत्यधिक सुंदर, जो माने ए संसार रे विभिन्न पद पदवी को प्राप्त होइछन्ति, धन को प्राप्त होइछन्ति, धनी व्यक्ति एमाने भगवान के चरण रे निजर अहंकार को त्याग करी एपरि भाव में लोटी पारिबे नाही। कारण ये अहंकार ही आमर भक्ति रे बाधक। जे पर्यंत मन रे अहंकार रही से पर्यंत हृदय रे भक्ति भाव उद्रेक हब नाही। तेणु जो माने एभरी उच्च कुल संभूत ज्ञानी बा धनी व्यक्ति बा सुंदर व्यक्ति से मन रे अहंकार रही था जे मु बड़ा धनी व्यक्ति बा सुंदर व्यक्ति बा मु ज्ञानी व्यक्ति बा उच्च कुल रे मोर जन्म हेछि। एई अहंकार हेतु से माने भगवान के चरण रे प्रपन्न ही पारंती नाही बा शरणागत ही पारंती नाही। तेणु भगवान के चरण चिन्ह रे चरण धूलि रे लोटिवार सौभाग्य से मान को प्राप्त ही पारे ना जेहेतु से हृदय रे अहंकार रही था। किंतु अक्रूर समस्त अहंकार को परित्याग करी से भगवान चरण धूलि रे वर्तमान लोटुछन्ति। से भाबुनाहंती जे मु कंसर मंत्री मु किपरि भावरे ए गोपाल बालक कृष्णकर चरण धूलि रे मु लोटिबी संसार कौन कहिबो। साधारण भावरे लोक माने कौन कहिबे जे कंसर मंत्री जने गोपाल बालकर चरण धूलि रे जाई लोटुछि। किंतु अक्रूर एक कथा चिंता करूना से अहंकार को त्याग कर एवं केवल सेतिक नुहे भीयम भय को मध्य त्याग कर। भय अक्रूर कौन जेतेबेले अक्रूर कृष्णकर पाद धूलि रे लोटी जाउछन्ति श्री विश्वनाथ ठाकुर वर्णना कर व्याख्या टीका जे अक्रूर भय रहिबा स्वाभाविक। जे कंसर अनुचर माने दूत माने मध्य चतुर्दिगार रहिछन्ति। तेणु कंसर दूत माने जेतेबेले देखिबे जे जो अक्रूर को कंस प्रेरण करिछि कृष्ण बलराम को मथुरा आनयन करबा पई दूत भाव रे कंसर दूत कंसर शत्रुर चरण धूलि रे वर्तमान लोटी जाउछि। तेणु जेतेबेले कंसर गुप्तचर माने कंस को जाई संवाद देबे सेतेबेले अक्रूरंकर स्थिति कौन हो। कंस सेतेबेले अक्रूरंक प्रति कौन धारणा करिवो। से भाबिबो जे मोर शत्रुर चरण धूलि रे मोर दूत जाई लोटी जाउछि। तेणु अक्रूर निश्चित भाव में मोर विश्वस्त भृत्य नुहे। से निश्चित भाव में कृष्ण बलराम समर्थक। तेणु मु ताकु दंड प्रदान करी। कंस निश्चित भाव में एक चिंता कर। किंतु वर्तमान अक्रूर से दंड भय आउ नाही जे कंस मते दंड प्रदान करिबो जदि मु कृष्णकर चरण धूलि रे लोटी जीवी से भय वर्तमान अक्रूरंकर नाही। कृष्ण भक्ति रे से एते व्याकुल ही उठिचंती जे समस्त अहंकार को त्याग करिसंती कंसर भय को मध्य त्याग करिसंती। से भगवान का चरण धूलि रे लोटिबा को से कुंठाबोध करूना एवं केवल सेतिक नुहे
शुचम शोचना को मध्य से त्याग कर हित्वा दंभं भीयं शुचम दंभ भय एवं शोचना शोचना कहा पाई अक्रूर जानिछन्ति जे कंस जेतेबेले संवाद पाइब जे मु तार शत्रु पाद तले पादर चरण चिन्ह लोटी जाउची सेतेबेले से मते तो दंड देवा कथा चिंता करिवो ता सहित मोर मथुरा जो परिवार रही से परिवार अवस्था कौन हम कंस मते दंड देवा सहित मो परिवार स्त्री पुत्र कन्या एमान को मध्य दंड दब एमान को मध्य जीवन रे से मारी दे पारे तेणु अक्रूर जो शोचना हवा कथा शोक हवा कथा जे मु हे तो ब्रजरे रही आ फेरबी मथुरा तेणु कंस भयरू बा कंस दंडरू मोर रक्षा हो मोर परिवार कौन हम से तो कंस दंड दब से तो जीवन में मारी दे पारे कंस उपर कौन विश्वास ना तेणु अक्रूर वर्तमान से शोचना को शोक को त्याग कर परिवार प्रति जो मोह से मोह को मध्य से त्याग कर कंस काले से जीवन में मारिदब दंड दब से शोचना मध्य से करूना जहा हो परिवार ध्वंस हो जाऊ कंस मत जीवन में मारी दो मत दंड दो से कौन सी कथा को चिंता न करी वर्तमान अक्रूर भगवान प्रेम रे व्याकुल हो चरण रे लोटी जाइछ तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते प्रकृत पक्ष अक्रूर जीवन आज सफल हो सार्थक आम देखा गले अक्रूर कंसर संदेश ठारू कंसर आदेश प्राप्त होगा ठारू अक्रूर जो भाव धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो कृष्ण के प्रति एवं शेष से कृष्ण प्रेम को प्राप्त होती ही प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य जीवन रे प्रत्येक व्यक्ति एहीपरि भाव रे जीवन रे भक्ति मार्ग रे अग्रगति करने आवश्यक जेपरि एक जने साधारण साधक भक्त से जेपरि प्रथमे साधु संगरे कृष्ण कथा श्रवण करुछि एवं कृष्ण कथा श्रवण करी से साधन करुछि भगवान कथा चिंता करुछि स्मरण करुछि एवं धीरे धीरे भगवान नाम कीर्तन भगवान विग्रह दर्शन विग्रह सेवा भगवान कीर्तन स्मरण सेवन ये सब भक्तिर अंग तेणु ये सब अंगर साधन करुछि एपरी अंगर साधन करने पर जितेबाला से समस्त प्रकार अनर्थरु मुक्त हो भक्ति मार्ग रे तार निष्ठा उत्पन्न हम से भगवान के प्रति से आसक्त हो पड़ो एवं शेष अवस्था से भाव एवं प्रेम को प्राप्त हो ये हूँ साधनार स्तर तेणु अक्रूर ठीक से परी एक साधक भाव से प्रथमे नारद मुनि ठारू भगवान कथा श्रवण कर श्रवण करी भगवान के प्रति से आकृष्ट एवं आकृष्ट होई भगवान पूजा अर्चना अक्रूर गुप्त रूप से मथुरा थिबा समय से कृष्ण भक्त तेणु भगवान विग्रह सेवा भगवान कथा कीर्तन नाम कीर्तन भगवान स्मरण तांकर पाद सेवा ये सब अक्रूर संपादन कर जितेबाला रथर बसी आसुंट भगवान कथा चिंता करी करी अक्रूर संपूर्ण भाव में शुद्ध हो से भगवान के प्रति आसक्त हो पड़ती एवं तांकर भगवान चरण चिन्ह को दर्शन करने मात्र तांकर हृदय रे प्रेम भाव उद्रेक
तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते देहभृताम यान अर्थ देहधारी मानकर यह ही होची जीवनर लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त हेबा होची जीवनर लक्ष्य। तेणु एहीपरि भाव अक्रूर जेतेबेले उचित ही पुनः रथ आरोहण कर जाउछंती एवं कृष्ण बलराम को दर्शन करुछंती सेतेबेले कृष्ण बलराम को किपरि भाव अक्रूर दर्शन करुछंती भगवान रूप वर्णना करने को जाई सुखदेव गोस्वामी कहते ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदहनं गतो जेतेबेले कृष्ण एवं बलराम ब्रजरे गोदहन करने पाई जाउछंती एवं गोष्ठरे आसी पहुंची से समय अक्रूर तांको दूररू दर्शन करुछंती ददर्श कृष्ण राम कृष्ण एवं बलराम एक साथ दुई जन को दर्शन करुछंती एवं सेमानंको दर्शन करी अक्रूर देखुछंती जे दुई जनकर रूप किपरि भाव देखा जाउछि जे जणे तांका भितरु पीत वस्त्र धारण करिछि अर्थात कृष्ण पीतांबर धारण करिछंती पीत वस्त्र धारण करिछंती एवं नीलांबर धारण करिछंती बलराम नीला वस्त्र धारण करिछंती एवं सेमाने शरद अंबुरुह इक्षण एवं सेमाने जेतेबेले देखुछंती तांकर इक्षण बा दृष्टि किपरि भाବରେ देखा जाउछि ना शरद अंबुरुह शरत कालीन अंबुरुह अर्थात कमल शरत कालीन कमल पद्म सदृश तांकर दृष्टि देखा जाउछि अत्यंत सुंदर एवं शीतल दृष्टि भगवान कृष्ण एवं बलराम जो दृष्टि ताहा शरतकालीन कमल सदृश अत्यंत शीतल एवं सुंदर दृष्टि एवं किशोर एवं दुई जनकर बयस हूँ किशोर बयस जदिव भगवान कृष्ण एवं बलराम से वृंदावन रे 10 वर्ष 8 मास पर्यंत प्राय 11 वर्ष पर्यंत लीला विलास करथिले तेणु तांकर ए किशोर रूप ताहा हेउछि भगवानकर नित्य रूप तेणु अक्रूर ए नित्य किशोर रूपर दर्शन करुछंती कृष्ण बलराम को जेतेबेले से देखुछंती जे किशोर श्यामलस्यत जे किशोर वय प्राप्त जो कृष्ण एवं बलराम तांका भीतर जड़े श्यामल वर्ण एवं जड़े श्वेत वर्ण गौर वर्ण बलराम होती गौर वर्ण एवं कृष्ण होती श्यामल वर्ण श्री निकेत बृहत भुज जो कृष्ण से होती लक्ष्मी देवींकर आश्रय स्थल लक्ष्मी देवी तांकर हृदय रे निवास करुछंती श्री निकेत तेणु लक्ष्मी देवी भगवान बक्ष देश रे एक स्वर्ण रेखा भाव में निवास करुछंती तेणु नित्य लक्ष्मी देवी वासस्थल आश्रय स्थल होउछि भगवान बक्ष देश श्रीनिवास बृहत भुज एवं भगवान जो भुज जुगल ताहा अत्यंत शक्तिशाली एवं सुंदर सुंदर शक्तिशाली एवं कोमल भुज जुगल तेणु अक्रूर दर्शन करुछंती भगवान से सुंदर भुज जुगल तांकर सुंदर रूप श्याम वर्ण एवं गौर वर्ण शरीर ता सहित सुमुख भगवान मुखमंडल अत्यंत सुंदर देखा जाउछि सुमुख सुंदर वर तेणु भगवान होउछंती सुंदर अर्थात सुंदर व्यक्ति मान मध्य श्रेष्ठ सुंदर सुंदर वर अर्थात अत्यंत सुंदर तांकठारु बड़ी सुंदर व्यक्ति ए संसार रे आउ केही नाहंती सेति भगवान को असमर्थ बोली कहा जाय
सौंदर्य भगवान कहीं समकक्ष हेबे नाही बा तांक ठारे बड़ी अधिक सुंदर हेबे ना कई एपरी व्यक्ति संसार रे नाहंती तेणु तांकर असमर्थ सौंदर्य सुंदर वर बल धीरद विक्रम एवं जदिओ तांकर किशोर बयस बेसी बयस नुहे किंतु बल धीरद विक्रम धीरद अर्थात हस्ती हस्तीर दुईटी दांत था तेणु ताको धीरद बोली कहुए दुईटी दांत थिबा हेतु हस्तीर अन्य नाम धीरद दंता हाथी दुईटी दांत था